اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، میں فجر کے پہلے ہی اسٹوڈیو آ چکا ہوں۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سارے کام، کیونکہ سفر بھی ہو رہے ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، دین کا کام بھی ہو رہا ہے، سیاسی جلسے بھی ہو رہے ہیں، دینی اصلاحی جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج گجرات کے صنعتی بزنس سٹی سورت شہر میں آج میرا بیان ہے۔ سورت کے بھنڈی بازار اون میں مسجد بلال کے پاس آج بعد نماز عشاء فوراً ایک شاندار پروگرام اصلاح معاشرہ اور مکاتب دینیہ کی اہمیت اور بچوں کا سالانہ جلسہ، ایک بہت ہی شاندار پروگرام آج سورت کے اون بھنڈی بازار مسجد بلال کے پاس ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے ابھی یہاں سے 8:30 بجے نکلنا ہے جلگاؤں سے، اس لیے فجر سے پہلے میں ریکارڈنگ کے لیے آ چکا ہوں۔ 2 سے 2.5 گھنٹہ ریکارڈنگ کے لیے لگتا ہے۔ ہم لوگ بڑی محنتوں سے کام کرتے ہیں، بس دعا کیجیے کہ اللہ ان خدمات کو قبول کرے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے بڑا بزدلانہ حملہ کیا۔ وہ معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ مریض جن کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا، غزہ کی الرشید سڑک پر اسرائیل کے کتوں نے ان پر بھی گولیاں برسائی اور پھر سڑکوں پر لاشیں ہی لاشیں نظر آئی۔ بے گھر افراد کے دل دہلا دینے والے مناظر نظر آئے۔ شفا جو ہاسپٹل ہے اس پر بھی بمباری کی، درجنوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر اب پوری دنیا چیخ رہی ہے۔ ملک کے، بھارت کے بڑے مشہور کھلاڑی ہے عرفان پٹھان، انہوں نے بھی غزہ کے معصوم بچوں سے کھل کر اظہار یکجہتی کیا اور تمام عالمی رہنماؤں سے کہا کہ پلیز متحد ہو جائیں اور اس بے رحمانہ قتل کو بند کرے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت اور اسرائیل کا امریکہ کا آتنکواد جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں 166 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، خواتین اور بچے بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب دنیا کے تمام لوگ پکار رہے ہیں کہ جو بائیڈن شرم کرو۔ اصل آتنکوادی جو بائیڈن ہے، اصل ٹیررسٹ جو بائیڈن ہے اور اسرائیل کا یہودیوں کا ناجائز باپ جو بائیڈن ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن شرم کرو،
हुकूक इंसानी की बात करते हो और दूसरे मुल्कों में अमन फैलाने की बात कर रहे हो, तुम्हारा हथियार और तुम्हारी फौजें इजराइल में जाकर आतंक का नंगा नाच कर रही है। गर्ब उर्दून में भी इजरायली फौज ने फायरिंग किया और 8 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अगला दिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के आतंकवाद और अमेरिका के आतंकवाद का हमास और मुजाहिदीन भी जबरदस्त अंदाज में जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल यूं समझिए कि निहत्ते है, लाचार है, बेबस है, लेकिन उनका ईमानी पावर, उनका रूहानी पावर, मस्जिद अक्सा से उनकी मोहब्बत, बैतुल मुक़द्दस से उनकी मोहब्बत और अपनी ज़मीन को बचाने का जो जज्बा उनके अंदर है, वो उस जज्बे के तहत ज़ोरदार अंदाज में इजरायली और अमरीकी कुत्तों को जवाब दे रहे हैं। और खबरें आ रही है कि हमास ने यह कहा है कि इजराइल को इंशाअल्लाह गज़ा की तारीख में लानत बना देंगे और गज़ा की सरजमीन को इजराइल की मौत का सामान और कब्रिस्तान बना देंगे। और जंग में मजीद शिद्दत लाने का हमास ने भी ऐलान कर दिया है। जमीनी हमलों में इजरायली फौजियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 24 इजरायली अमरीकी कुत्ते मारे गए हैं, जहन्नम में पहुंच चुके हैं और हमास ने जबरदस्त अंदाज में मुकाबला करके दर्जनों इजरायली अमरीकी टैंकों को तबाह कर दिया है। और हमास ने इजराइल के जितने कैदी है, बड़ी तादाद में अब हमास के पास है और कैदियों के अहले खाना तेल अबीब में एहतजाज कर रहे हैं। यानी इजरायली कैदियों के अहले खाना घर वाले तल अबीब में एहतजाज कर रहे हैं। यानी हमास भी किसी तरीके से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और ये भी कम बड़ी कामयाबी नहीं है कि 1 महीना हो गया है और दुनिया के 2 सुपर पावर आतंकवादी अमेरिका और इजराइल, इनके सामने छोटा सा फलस्तीन और मुजाहिदीन की छोटी सी जमात मुकाबला 1 महीने से कर रही है। क्या तो अमेरिका और इजराइल को घमंड था कि 1 घंटे में हम फलस्तीन और गजा को खत्म कर देंगे। 1 महीना हो चुका है, इजराइल परेशान है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, ईरान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईरान में गुज़िश्ता कल जुमा की सुबह मंशियात की बहाली का जो मरकज़ है वहां पर खतरनाक आग लगी और आग इतनी खतरनाक थी कि 27 लोग हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मीज़ान ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट ने सूबाई चीफ जस्टिस इस्माइल सादिकी के हवाले से बताया कि तेहरान के शुमाल में वाक़े गीलान सूबे के शहर लंगरूद में मंशियात की बहाली के मरकज़ में आग लगने से 27 अफराद हलाक हुए हैं और 12 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजूहात का अभी कोई फौरी तौर पर मामला सामने नहीं आ सका, लेकिन चीफ जस्टिस इस्माइल सादिकी ने कहा कि इंक्वायरी शुरू है, तहकीकात जारी है। मजीद कहा कि मरकज में मुमकिन तौर पर 40 अफराद जेर इलाज थे। मकामी न्यूज एजेंसी ने फुटेज शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि रात में आसमान आतिश ज़दगी से रोशन हो गया, जबकि धुएं के बड़े बड़े बादल उठते देखे जा सकते हैं। आग पर काबू पाने के बाद दीगर तस्वीर में भारी नुकसान देखा जा सकता है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइरा दिन ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है गजा को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि गजा तकरीबन खंडर हो चुका है, पूरा कब्रिस्तान बन चुका है। और अब खबरें आ रही है कि इजरायली फौज ने यह दावा किया है कि गजा शहर का चारों तरफ से हमने घेराव कर लिया है। और इजरायली फौज का यह भी दावा है कि यानी आतंकवादी फौज, इजरायली अमरीकी आतंकवादी फौज का यह भी दावा है कि जमीनी, समंदरी और फजाई रास्ते से शिमाली सरहद का हम दिफा जारी रखेंगे। इजरायली फौज के तर्जुमान ने ऐलान किया कि गजा शहर को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है और यह भी कहा है कि हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा इजराइल के लिए एक लानत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इजरायली और अमरीकी कुत्तों
कुत्तों का मामला हमास सिर्फ बहाना है, और हमास को खत्म करने के बहाने से वो फलस्तीन को खत्म करना चाहते हैं और फलस्तीनियों को खत्म करके पूरे फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जा करना चाहते हैं। और मस्जिद अक्सा का जो उनका प्लान है वो प्लान इन इजरायली अमरीकी कुत्तों का, यहूदी कुत्तों का है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम हमास को खत्म करने के लिए हमले कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि इजराइल के तर्जुमान की जबान से सही बातें अचानक निकल गई। उन्होंने कहा कि इजराइल सिवाय आम शहरियों के, सिविल सोसाइटी के और मासूम बच्चों और औरतों और बूढ़ों के अलावा किसी को भी नहीं मार रहा है। यानी इजराइल के तर्जुमान की जबान से अचानक सही बातें निकल गई कि सच तो यह है कि कोई हमास तबाह नहीं हो रहा है, हमास के बहाने से आम फलस्तीनियों को मारा जा रहा है। और इजरायली आतंकवादी नेतन्याहू पीएम ने यह कहा है कि इजरायली बर्री दस्ते गज्जा के मरकजी इलाके की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। इजरायली वजीर आजम के प्रेस ऑफिस से यह बयान जारी हुआ है। आखिरी बड़ी खबर भी इजराइल के आतंकवाद और अमेरिका के आतंकवाद को लेकर आ रही है। जी हाँ, इजरायली बमबारी में गुज़िश्ता कल एक सहाफ़ी फिर शहीद हो गया। लाइव कवरेज के दौरान उसके साथी रिपोर्टर और एंकर रो पड़े। अब तक यूं समझिए कि 40 के करीब रिपोर्टर्स, एंकर भी मारे गए हैं। हमारे यहाँ के जो गए हैं वो इजराइल की तलवे चाट रहे हैं और इजराइल की हिफाजत में हैं और सिर्फ इजराइल की खबरें ही वो कवर कर रहे हैं कि हमास ने इजराइल को ये नुकसान पहुंचाया। तो ये जितने हमारे यहाँ के चाटुकार गए हैं वो सब महफूज है, जितने दलाल गए हैं वो सब महफूज है, क्योंकि वो इजराइल के अलावा कोई चीज़ और दिखाई नहीं रहे। वो गज्जा में जाने की उनकी माँ ने दूध पिलाया ही नहीं कि गज्जा में जाकर गज्जा में होने वाले मासूम फलस्तीनियों की शहादत को और मासूम बच्चों की शहादत को दिखाएं। खैर, एक खबर यह भी आ रही है कि हमास के अस्करी विंग ने इजरायली गांव पर 12 रॉकेट फायर किए हैं। तर्जुमान अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा बयान आया है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि इस्माइल हानिया हमास के लीडर ने यह कहा है कि फलस्तीनी पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। खुदा करे कि पाकिस्तान को शर्म आए, खुदा करे कि सऊदी अरब को गैरत आए, खुदा करे कि इस्लामी मुल्कों को गैरत आए, शर्म आए और वो मजलूम फलस्तीनियों की मदद करे। इस्माइल हानिया का बयान है कि फलस्तीनी पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस जैसे काफिर मुल्क ने यह कह दिया कि इजराइल को अपने दिफा का हक नहीं है, क्योंकि इजराइल खुद आतंकवादी है और इजराइल ने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है।